آپ کو بتائیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کی جانب سے 18ویں کانوکیشن کا انعقاد ہوا۔ وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری تقریب کی صدارت کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ میٹنگ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے کہ بھی آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ یار مجھے کوئی پریکٹیکل سولوشن بتاؤ، یہ حالات صحیح نہیں ہو رہے۔ جب سر مطلب آپ دکھے دل سے یہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہی جو روزے ازل سے تھی کوئی ہے نا، تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی حال ضرور نکل آئے گا۔ بٹ صاحب جو کبھی چلے گا ان کو بھی کبھی بلا لیا کریں، مطلب یہ بھی ان کے پاس بڑی چیز ہے، مین آف ڈسپلن، ہی ہیز ویری گڈ سجیشن۔ اچھا ایسے ہوتا نا، مشاورت کریں گے تو میرا خیال کوئی نہ حالات جتنے خراب ہیں، آج گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے، میرے خیال کوئی نہ کوئی حق نکل آئے گا۔ اچھا تھوڑی سی بات میں جو ہمارے لیول، میں نے کہا بڑا کلائمیکس پہ پہنچا ہوا تھا کام، لیٹ می برنگ یو ڈاؤن فار فیو منٹس۔ بات ہو رہی تھی مال کمانے کی اور خرچ کرنے کی اور حوث کی۔ دو چیزوں نے آپ کو بھی پتا ہے، ماشاء اللہ عالم دین بیٹھے ہیں، میں ان میں نہیں ہوں لیکن شوق مجھے ہے ان سے کو سننے کا، کہ مال اور اولاد بار بار ذکر آ رہا ہے نا قرآن کریم میں۔ اب میں آپ کی پاکستانی قوم ویسے ہی اپنا نا انسانی فطرت ہے شارٹ کٹس، یہ پاکستانی قوم میں سب سے زیادہ آ گئی ہے، مطلب ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز میں شارٹ کٹ۔ آج اگر میں نے گریجویشن کی ہے تو میری خواہش ہے کہ موٹر سائیکل سزوکی سے ہی کل کو کار ہونی چاہیے۔ ہمیں زمانہ یاد جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم پیدل جایا کرتے تھے، میں کہیں بھی اپنے 3.5 مائل ٹریول کرتا تھا بیک اینڈ فورتھ، گرمی سردی میں نے کیا ہے مطلب۔ لیکن اب حالات بدل گئے، ساری دنیا میں بدل گئے، یہ جب انسان آسانیاں دیکھتا ہے ہر ایک کی خواہش ہے۔ 2009 میں جب میں نے شروع کیا تو میں ڈی ایچ کیو بھی جایا کرتا تھا، رکشے میں جاتا تھا، وہاں رش رہا ہوتا تھا کاروں کا، ویسے بھی رکشے میں سفر کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے، پیدل چلنے کا اور رکشے میں سفر کرنے کا۔ تو میں نے روکا پی ایم سی گیٹ کے سامنے، میں نے کہا بیٹے میں نے ڈی ایچ کیو جانا ہے، تو کہتے سر بیٹھ جائیں، کتنے پیسے لیں گے؟ یوں ہی نہیں میں 50 روپے دیتا تھا، کہتا سر میں نے 40 روپے لینے، اور میں کہا نہیں بیٹے میں تو 50 روپے دے کے جاتا ہوں، کہتا نہیں سر 40 سے میں نے زیادہ ہی لیا۔ خیر میں 50 روپے دیے، جب میں وہاں پہنچا تو میں تلاوت بھی میں ہی کرتا تھا، تو میں نے جب تلاوت کی تو سارے ڈاکٹروں کو میں نے ایڈریس کیا، یار یہ آج میرے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور نے کیا، ہمارے ڈاکٹروں کی جیبیں نہیں بھرتی مریضوں سے فیس لے کے، تو یہ ہے رکشہ ڈرائیور کا اپروچ ٹو لائف۔ کوشش کریں جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، اور اس میں لگتا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، جو بتا رہا ہوں اس میں وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا آپ نے مجھے باقی کا نہیں پتا، فیصل آباد میں جتنی آج کل لیب کھول رہی ہے نا، لکھا ہے کہ ڈائگنوسٹکس اینڈ ریسرچ سینٹر، اور کوئی قسم کی بات ہے وہاں ایک پیسے کی بھی بات ریسرچ ہو رہی ہو، مجھے یہ بات ہو گئی۔ پھر ایسی چیزیں پریسکرپشن پیڈ پہ وہاں لکھی جاتی ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں ہے ان ٹرمز آف کوالیفیکیشن، کہاں جائیں گے؟ یہ ہم ڈاکٹر کر رہے ہیں، نوبلسٹ پروفیشن ان دا ورلڈ، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میری اپنی ایک ریلیٹو پچھلے 35 سال سے میں اس کے پریسکرپشن آتے ہیں، مریض آتے ہیں تو پتا کیا ڈی جی او ایس ٹی ڈی، آپ ایک انپڑھ آدمی کو ایس ٹی ڈی کا وہ کیا سمجھیں گے؟ اس کا کہنا ہے آسٹریلیا سے ڈگری لی ہوئی ہے، مطلب ایس ٹی ڈی بھی اسٹوڈنٹ، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد یار کسی چیز کی کمی ہے؟ علماء دین کو تو جو لوگ دین کا کام کرتے ان کو تو 100 باتیں ہوں گی، ان کے پاس مال و دولت اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے، اور مسائل ہیں ہمارے پاس، اللہ نے کوئی مثال ہی رہنے دیا، مطلب وہ ہم تو کم سے کم آنیسٹلی آبزرو کر لیں۔ پھر فارماسیوٹیکل کو انڈیولی ابلائج ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ مطلب ہماری اپنی وہ کانٹیکٹس ہیں ریڈیالوجی سینٹر سے، ہم اور کسی جگہ ٹرائی نہیں کرتے کہ نہیں جی وہاں نہیں، جی وہاں نہیں، وہاں جانا۔ گاڈ سے ایک کوشش کریں غریبوں کا، اپنی جیب سے زیادہ اللہ کو آپ نے خوش کرنا ہے نا، اپنی جیب سے زیادہ مریض کی جیب کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کوئی کمی نہیں رہنے دے گی، مریض آپ کے لیے دعائیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا میں آپ کے لیے جنت پیدا کر دے گی۔ اور آپ سب سے جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں، ہم نواز شریف کو
इमरान को जरदारी को नहीं बदल सकते। जिस महफिल में बैठो उनकी ऐसी तैसी फेरी जा रही है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी के हवाले से जिले इंतजामिया की बाकायदा पॉलिसी मुरतब न हो सकी, जिस वजह से आटा फी किलो 140 रुपए तक जा पहुंचा है। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। अभी बताएंगे आपको, बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुल रहमान से। अभी आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में गंदम खरीदारी के हवाले से जिले इंतजामिया की बाकायदा पॉलिसी मुरतब न हो सकी, जिस वजह से आटे फी किलो 140 रुपए तक जा पहुंचा है। दूसरी जानिब चक्की मालिकान को गंदम खरीदारी में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बात कर लेते हैं इसी हवाले से अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। तो इस हवाले से अभी गंदम की कटाई का अमल जारी है और 100% कटाई नहीं हुई, ताहम जो आटा है वो 140 रुपए किलो मार्केट में फरोख्त हो रहा है। तो ये अभी से अगर ये रेट चला जाता है तो यहाँ पर आने वाले दिनों में मजीद आटा महंगा होगा। तो यहाँ पर एक कस्टमर अभी चक्की में आटा खरीदने आए, तो उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर? बड़ा दुख होगा कि इतनी ज़्यादा जब इसकी होगी, कीमत ज़्यादा होगी तो दुख ही होगा ना। तो अभी भी वही रेट है जो पहले थे, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और हमें परेशानी आवाम को होती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी। यहाँ पर हमारे साथ चक्की मालिक मौजूद है जो कि चक्की एसोसिएशन के सदर भी हैं। कैसर भाई, मुझे बताइएगा, क्या यहाँ पर चल रहा है 140 रुपये आटा स्टार्ट के दिनों में बड़ा महंगा है, तो ये वजह क्या है, क्यों नहीं आटा सस्ता हो पा रहा? ये भाई इस तरह है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ठीक नहीं है। देखें, हार्वेस्टिंग पिछले दिनों में अगर देखते हैं, जब नई गंदम आती है तो रेट कम हो जाता है। अब जो भी कस्टमर हमारे पास आता है वो हमारे साथ यही आगे गिला करता है, भी अभी नई गंदम चल रही है तो आपने रेट कम क्यों नहीं किया। उनको ये नहीं पता अभी गवर्नमेंट ने जो रेट है वो पिछले 2200 था, अब 3900 रुपये कर दिया है, लेकिन अब जो मार्केट में है वो 4800 रुपये में हमें गंदम मिल रही है। इसको कैसे कंट्रोल करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? जो ज़िली इंतज़ामिया है वो पकड़ दकड़ कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, 3-4 दिन पहले जो है वो हमारी एक चक्की के ऊपर एसी साहबान ने छापा मारा और जो वहाँ से 30 थैले पड़े थे गंदम के, वो उठा के ले गए। देखें, हम जो है आटा ना तो हम अफ़गानिस्तान भेज सकते हैं, ना हम किसी और ज़िले में भेज सकते हैं। हम जो हमारे आसपास की आबादी है हम उसको ही बड़ी अच्छे तरीके से कवर कर लें तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो 30 थैले उठा के ले गए। वो कहते हैं अभी आप 30 थैले भी नहीं रख सकते। देखिए, अगर हमने 30 थैले भी नहीं रख रहे तो फिर हम चक्कियाँ बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट जहाँ से अब वो आवाम को आटा जो फराम करना है वो कर ले। देखिए, हम गंदम जो है वो कोई घर में से गंदम लेके आता है, हम उसको गंदम पीस के देते हैं। ये जो तकरीबन 50% आबादी वो है जो घर से गंदम लेके आती है, हम उसको पीस के देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ तावन करे, लेकिन गवर्नमेंट बजाय तावन के वो हमें ही वो बड़ी जिम्मत दे रही है, वो हमें ही पकड़ दकड़ कर रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले दिनों में आटे का रेट अभी जो है 140 रुपये है, आने वाले दिनों में ये 200 से क्रॉस कर जाएगा। जी, इस हवाले से कहा जा रहा है कि अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जंग में फ्लोर मिल्स की जानिब से महकमा खुराक के खिलाफ 2 रोज़ा अलामती हड़ताल का मामला। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जंग ने हड़ताल में शमूलियत न करने का फैसला कर लिया। सोमवार और मंगल के रोज शहरियों को बिलातातुल आटे की फ्राहमी जारी रहेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, सोमवार और मंगल के रोज शहरियों को बिलातातुल आटे की फ्राहमी जारी रहेगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के महकमा खुराक के इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। मंगल के रोज लाहौर में लाइहा अमल मुरतब करने के लिए इजलास होगा। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अपडेट कीजिएगा अवैस। बिल्कुल, एसोसिएशन की जानिब से महकमा खुराक की जानिब से गंदम की रोकथाम की हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात तो बरकरार हैं। ताहम जंग में फ्लोर एसोसिएशन की जानिब से 2 रोज़ा अलामती हड़ताल जो सोमवार और मंगल के रोज इसका एलामिया जारी किया गया था, उसमें शामिल न होने का फैसला किया गया है, जिसके बाद सोमवार और मंगल के रोज शहरियों को बिलातातुल आटे की फराहमी का अमल जो जारी रहेगा। इस हवाले से सदर एसोसिएशन जो है जाहिद खान, उनका कहना है कि मंगल के रोज लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का जो है इजलास तलब किया गया है, जिसमें जिस मुतालबात का जायजा। शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। अवैस अपडेट कर रहे थे हमें, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जंग ने हड़ताल में शमूलियत न करने का फैसला कर लिया। सोमवार और मंगल के रोज शहरियों को बिलातातुल आटे की फ्राहमी जारी रहेगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के महकमा खुराक के इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात मंगल के रोज लाहौर में लाइहा अमल मुरतब करने के लिए इजलास होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको,
فلور ملز کی جانب سے محکمہ خوراک کے خلاف 2 روزہ علامتی ہڑتال کے معاملے کے حوالے سے فلور ملز ایسوسی ایشن جھنگ نے ہڑتال میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سوموار منگل کے روز شہریوں کو بلا تعطل آٹے کی فراہمی جاری رہے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے محکمہ خوراک کے اقدامات پر تحفظات منگل کے روز لاہور میں لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے اجلاس ہوگا۔ دوسری جانب احمد پور سیال میں گندم خریداری مراکز پر کسانوں کے لیے بہترین انتظامات نہ کیے جا سکے۔ گندم خریداری مرکز گڑھ موڑ پر کسانوں کے مناسب سایہ ٹھنڈے پانی کا اہتمام بھی نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے عمار یاسر۔ عمار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ احمد پور سیال میں گندم خریداری کا سلسلہ جاری ہے، لیکن گندم خریداری کے لیے ان پی آر سینٹرز پر جو ہے وہ خاطر خواہ کسانوں کے لیے انتظامات نہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسان بھی جو ہے وہ یہاں پر گندم فروخت کرنے کے لیے جو آتے ہیں تو ان کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر میرا کیمرہ میں نے دکھایا تو گڑھ موڑ 1 پہ موجود اور یہاں پر جو ہے کسانوں کے لیے انتظامات انتہائی ناقص دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو صفائی کا بھی بہتر انتظام نہ ہے اور گزشتہ دنوں ہونے والی بارش کی وجہ سے تاحال جو ہے پانی یہاں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ پانی جو ہے وہ تفن زدہ ہو چکا ہے اور بدبو پھیلا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کسانوں کا اور یہاں پر کام کرنے والے عملے کا بیٹھنا بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کہ ابھی جو ہے زیادہ بندوبست دیکھنے کو عمار نہیں۔ یاسر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چریوٹ میں عید گزرتے ہی سبز مسالوں، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے۔ قیمتیں کم ہونے سے خریداروں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں بابر منیر سے۔ بابر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کے بعد کچھ سبزیوں اور مسالہ جات سمیت جو پھل ہیں ان کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے اب عید گزر گئی ہے، منافع خور بھی جو ہے وہ کچھ نرم پڑ گئے ہیں، تو جس وجہ سے قیمتیں کچھ کم ہیں۔ تاہم ابھی ایسی سبزیاں جو ابھی سیزن نے آنا ہے، مثال کے طور پر اگر گھیا، توری، ٹینڈے اور جو ہے وہ دیگر جو سبزیاں ہیں، بھنڈی ہے، ان کی قیمتیں ابھی بھی 100 روپے سے زیادہ ہیں۔ جو ٹینڈے ہیں وہ 150 روپے کلو ہیں، اسی طرح جو بھنڈی ہے وہ 120 روپے کلو ہے، گھیا توری 105 روپے کلو ہے۔ تاہم جن سبزیوں کی جو سیزن آف ہو گیا وہ ان کی قیمتیں کم ہیں، کدو، بینگن، گوبھی، ان سبزیوں کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہیں۔ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ادرک کی قیمت بھی زیادہ ہے، کچھ سبزیوں کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں۔ دیکھیں جی، جو سبزیاں ہیں پہلے تو کچھ مہنگی تھی، اب جو آ رہی ہیں کچھ سستی ہیں کچھ مہنگی ہیں۔ ادرک جو ہے وہ 800 اور 600 اور 80 روپے کلو تھا، مگر وہ بھی کچھ رعایت ہو گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے مثلا آج ہم نے دیکھا ہے 620 روپے کلو ہے۔ بھنڈی توری جو ہے وہ مہنگی ہے، توری گھیا توری وہ بھی مہنگی ہے، کدو سستے ہیں، ٹماٹر وغیرہ یہ سستے ہیں۔ جو مقامی سبزی ہماری آ رہی ہے وہ سستی ہے، جو باہر سے آتی ہے وہ مہنگی ہے۔ لہذا غریب آدمیوں کو ابھی کچھ ریلیف ہوا ہے سبزیوں کی وجہ سے، کیونکہ رمضان شریف چلا گیا ہے، منافع خور لوگ جو ہے منافع کما کے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تو اس لیے کچھ ٹھیک ہے۔ اب پھر بھی حکومت کو چاہیے ان پہ کچھ نگاہ رکھیں۔ صبح یہاں آئے ہوئے تھے، جرمانہ کر رہے تھے لوگ افسران، ان کی وجہ سے بھی کچھ ٹھیک ہے۔ بالکل بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بابر۔ شورکوٹ میں کینٹ روڈ باہو انٹرچینج کے قریب آئل ٹینکر الٹ گیا۔ ریسکیو ٹیم میں موٹر وے پولیس اور پنجاب پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے شہزاد علی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شورکوٹ شہر میں شورکوٹ کینٹ روڈ پہ باہو انٹرچینج کے قریب جو ہے 2 آئل ٹینکر جو ہیں وہ ٹکرا گئے ہیں، جس کے بعد فرنس آئل کا جو ٹینکر ہے وہ الٹ گیا ہے، جس کے بعد جو 50 لیٹر کے قریب جو آئل ہے وہ بھی بہہ گیا ہے، جس کے بعد جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئی ہیں اور اسے ہٹانے کے لیے جو کام ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او جھنگ کی ہدایت پہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ شورکوٹ کینٹ تھانہ ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ سٹی جو ہیں وہ خود بھاری نفری کے ہمراہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ موٹر پولیس بھاری تعداد میں یہاں پہ موجود ہے اور یہاں سے جو ہٹانے کا کام ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ساتھ جو کینٹ روڈ کو ہے وہ مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے بھی بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ علاقہ مکینوں کو بھی یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی جو علاقہ مکین ہیں جو مسافر ہیں وہ اس کے قریب نہ جائیں تاکہ کوئی بھی بڑا حادثہ رونما نہ ہو سکے۔ جو آئل ٹینکر ہیں وہ یہاں سے کراچی سے جو ہیں وہ راول پنڈی کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی یہ یہاں پہ ٹکرا گئے، جس کے بعد جو فرنس آئل کا ٹینکر تھا وہ الٹ گیا، جس کے بعد جو ریسکیو کی جانب سے اسے ہٹانے کے لیے کام بھی شروع کر دیا گیا اور ڈرائیورز کا یہ کہنا ہے کہ ٹینکر شہزاد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔
आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने शोर कोट कैंट डिस्ट्रिक्ट जेल झंग के इलाके में ऑयल टैंकर उलटने के वाक़े का नोटिस ले लिया। सीनियर अफसरान को फौरी मौके पर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान पुलिस अफसरान को हिफाजती इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने शोर कोट कैंट डिस्ट्रिक्ट जेल के इलाके में ऑयल टैंकर उलटने के वाक़े का नोटिस ले लिया। सीनियर अफसरान को फौरी तौर पर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई। पुलिस अफसरान को हिफाजती इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। ट्रैफिक अफसरान को मुनासिब इकदाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। दरामदात बंद होने से मशीनों के पुर्जे नहीं पहुंच रहे। फैक्ट्रियों में पड़ी करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी नाकारा हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, दरामदात बंद होने से मशीनों के पुर्जे नहीं पहुंच रहे। बात करेंगे शराज भट्ट से, अपडेट कीजिएगा शराज। इसी तरीके से है कि इस वक्त जो करोड़ों रुपए की मशीनरियां हैं वो सिर्फ चंद हज़ार रुपए के पुर्जे ना होने की वजह से नहीं चल पा रही हैं, जिसकी वजह से सनतकारों को शदीद परेशानी का सामना है। हुकूमत वक्त की जानिब से वैसे तो इंपोर्ट बहाल की गई और कई कंटेनर्स जो हैं वो एक्सेप्शनल जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इंपोर्ट जो है वो खुल के बहाल नहीं हो सकी है। कई ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर जो है ताहाल इंपोर्ट जो है वो बैन है, जिसमें टेक्सटाइल मशीनरी के पार्ट्स भी शामिल है। मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहिए। मियां साहब बताइएगा, करोड़ों रुपए की मशीनरी सिर्फ चंद हज़ार रुपए के पुर्जों के पार्ट्स ना होने की वजह से जो है वो बंद पड़ी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शराज भाई, आपने अच्छी निशानदही की है। हम तो इसमें सफ़र कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ किस तरह की हैं कि आपने जो लग्जरी आइटम्स हैं, गाड़ियां हैं, फूड आइटम्स हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, उनको प्रायोरिटी दी हुई है। जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है, मैन्युफैक्चरर जो है वो मशीनरी यूज़ करते हैं, तो मशीनरी इंपोर्ट तो फिर हो जाती है। इनके पार्ट्स जो हैं, मेरी 2 मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, पार्ट्स नहीं आ रहे, इनकी डिवाइसेस नहीं आ रही, सीक्वेंस डिवाइसेस नहीं आ रही, इनके शटल नहीं आ रहे। तो जो पार्ट्स हैं उन पे फ़िलहाल पाबंदी है। वो कह रहे हैं ये प्रायोरिटी पे नहीं है। प्रायोरिटी पे आइटम्स जो हैं वो गाड़ियां हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, फूड्स आइटम्स हैं। तो इस वजह से आप मशीन हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं, पार्ट्स जो है उन पे जो है प्रायोरिटी नहीं है। तो हमारी तो इन गवर्नमेंट अदारों से गुजारिश है कि खुदा के लिए पॉलिसीज़ बनाते वक्त जो आपके पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर हैं, जो जॉब्स क्रिएटर्स हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, उनको मद्देनज़र रखा करें। आप इंडिविजुअल्स को मद्देनज़र रखते हैं। गाड़ियाँ इंपोर्ट ज़रूरी नहीं है। आपका मुल्क भारत है तो देख लें, वहाँ गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं। शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएंगे, नेशनल टैक्स काउंसिल की जानिब से टेक्सटाइल से वाबस्ता वेविंग, डाइंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देने का मामला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। इसी हवाले से बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर अपडेट कीजिएगा। नेशनल टैक्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स गुजारों को हिदायत जारी की गई है कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता 5 शोबाजात आते हैं, जिसमें वीविंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है और इस समेत 5 मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनको हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपना जो सेल्स टैक्स है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवाएंगे, ना कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवाएंगे। इस हवाले से ये PRA और FPR के माबैन एक तनाज़ा चल रहा था, जिसको नेशनल टैक्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हल किया गया था। और अब उसके बाद हिदायत जारी की गई हैं कि चूँकि टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सर्विसेज फराहम करती है मुख्तलिफ अफराद को, और उनसे मटीरियल लेकर उस पर अपनी सर्विसेज फराहम की जाती हैं। तो इसके लिए इनका जो टैक्स है वो अब सेल्स टैक्स FPR को जमा होगा। और इसके साथ साथ ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि अगर कोई भी टैक्स गुजार अपना टैक्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवा देगा तो उसके बाद FPR की जानिब से उस सेल्स टैक्स की ना तो कोई रिफंड्स होंगे और ना ही उसकी कोई एडजस्टमेंट फराहम की जाएगी। तो इसीलिए टैक्स गुजारों को ये हिदायत जारी की जाती हैं कि वो अपना सेल्स टैक्स जो है वो वफाक को जमा करवाएं, क्योंकि टॉल मैन्युफैक्चरिंग। बहुत शुक्रिया आपका उमर।
यहाँ पे आपको बताएंगे फैसलाबाद में महंगाई ने इतवार बाजारों को भी अपने लपेट में ले लिया। इतवार बाजारों में रश मामूल से भी कम, खरीदारी के लिए आए शहरी परेशान हैं। आपको अपडेट करें, महंगाई ने इतवार बाजारों को भी अपने लपेट में ले लिया है। इतवार बाजारों में रश मामूल से कम है, खरीदारी के लिए आए शहरी परेशान हैं। अब सस्ते बाजारों से भी चीजें सस्ती नहीं मिलती। अरसलान दौरानी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एतवार बाज़ारों को कदरे सस्ता बाज़ार समझा जाता है और यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी के लिए आती है। लेकिन अब हालात यहाँ पर भी वैसे नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। अब यहाँ पर भी महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो शहरी आते हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इतनी नहीं होती कि वो बआसानी चीज़ें खरीद सके। यहाँ पर शहरी मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस हद तक महंगाई का असर सस्ते बाज़ारों पर पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है बाज़ारों की? सस्ते बाज़ार भी अब वैसे सस्ते बाज़ार नहीं रहे। एतवार बाज़ार लगा करते थे, काफ़ी रश होता था, आजकल रश भी कम है, लोग कम आ रहे हैं खरीदारी के लिए, क्या कहना चाहिए? हुकूमत की तरफ से लगाए गए कुछ कानूनी और कुछ गैर कानूनी बाजारों में भी महंगाई का आलम है। यहाँ पे जो लोग खरीदारी के लिए आते थे पहले उनको कुछ रिलीफ मिल जाता था, मगर जब ये साल 1.5 साल से महंगाई का ये आलम है, ये बाजार सुनसान पड़े हैं और आम मार्केटों से भी इन सस्ते बाजारों में रेट ज्यादा हैं और गरीब गुरबा इधर आते थे मगर वो भी वापस जा रहे हैं। वो मजूसी के आलम है। इस गवर्नमेंट ने जो हालत कर दी है गरीब की वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये सस्ता बाजारों में भी महंगाई का आलम है, बल्कि आम मार्केटों से ज्यादा है। यहाँ की इंतजामिया भी ये सस्ता बाजारों वालों के साथ वो बदसलूकी करती है, इनसे बता लेती है, इनसे दूसरे मामलात है, कुछ कानूनी और कुछ गैर कानूनी। बल्कि फैसलाबाद में अक्सरियत से ये गैर कानूनी है। यहाँ की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला और दीगर जो इंतजामिया है वो इनसे बता लेती है बाकायदा, और ये सिलसिला चलता रहता है। ये जिस पर ये दुकानदार सब मजबूर है और महंगाई के आलम में कुछ भी नहीं है। गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल गरीब मजबूर है, आता है वो देख भाग कर इनको वापस चला जाता है। इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। बिल्कुल गरीब आवाम के लिए जो रिलीफ है वो नहीं दिखाई देता। यहाँ पर दुकानदार मौजूद से बात करते हैं। आप बताएं जी, क्या सूरत हाल है काम की? वो गाहक आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या क्या शाम दे सर कोई हालात नहीं है, सुबह दे फार के बैठे हैं इस तरह। की वजह लगती है? महंगाई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, महंगाई का जो असर है उसकी वजह से जो सस्ता बाजार लगाए जाते हैं वहाँ पर भी जो शहरी हैं वो बहुत कम तादाद में अब आ रहे हैं। अब वहाँ पर भी महंगाई की वजह से रश काफ़ी कम हो गया और शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे ताकि जो ख़रीदारी है या इस किस्म के जो सस्ते बाज़ार है वहाँ पर भी जो ख़रीदारी का अमल है वो भी जारी रहे। तो यहाँ पर अभी सस्ता जो एतवार बाज़ार है यहाँ पर रश काफ़ी कम हो गया है। जी, लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो गई है। सलाम, शुक्रिया आपका। जंग में धजी रोड पर लेडीज पार्क की तामीर के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। अरसा दराज से तबाहाली का शिकार पार्क की तासीन और आराइश के लिए 2 करोड़ से जायद के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। धजी रोड पर लेडीज पार्क की तामीर के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू। तबाहाल पार्क की ताज़ीन और आराइश के लिए 2 करोड़ से जायद के फंड्स मुख्तस। लेडीज पार्क की ताज़ीन और आराइश के लिए म्यूनसिपल कमेटी प्रोजेक्ट पर काम करेगी। पार्क की बहाली को पंजाब सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। पार्क में वॉकिंग ट्रैक, 4 दीवारी की मरम्मत समेत दीगर इकदाम किए जाएंगे। पार्क की बहाली के प्रोजेक्ट पर टेंडरिंग का अमल रवा माह ही मुकम्मल किया जाएगा। शहरियों की जानिब से प्रोजेक्ट के आगाज पर खुशी का इजहार किया गया। आपको बताएं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन पंजाब की जानिब से 18वां कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ है। आइए आपको लिए चलते हैं। खाती क्या है? बंदगी के अलावा वक्त की पाबंदी। क्या हम वक्त की पाबंदी करते हैं? क्या ये सेमिनार 9 बजे स्टार्ट हुआ था? क्या हम वक्त के साथ चल रहे हैं? किसी मुकर्रर ने 10 मिनट मिले थे, उसने 30-25 मिनट लिए, किसी को 20 मिनट मिले थे, वो उसके 10 मिनट लिए। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब कुछ जो इबादत बनाई है ये इसलिए बनाई है कि इससे मुआशरे के अंदर तब्दीली आए। इसी वजह से हमारे मुआशरे में तब्दीली नहीं आती। सर, मुझे सुबह खड़ा होना पड़ता है यहाँ पे कि 8 बजे बच्चे आ जाएं। 8:05 में मैं सारे दरवाजे बंद कर देता हूं। मेरे टीचर्स टाइम पे नहीं आते, मैं उनकी हाजिरी लगाता हूं, उसके बावजूद नहीं आते। क्या हासिल हुआ? रोजा कुर्बानी सिखाता है, नफ्स पे कंट्रोल सिखाता है,
कितने लोग, सब लोग रोजे रखते हैं, बच्चा बच्चा रोजा रखता है, हालांकि इसमें फर्ज भी नहीं है। मेरा ड्राइवर भी रोजा रखता है, हालांकि वो नमाज नहीं पढ़ता। कहते जी सर रोजा सारी उम्र नहीं छड़िया। मैं कह नमाज क्यों छड़ना है? रिचुअल बन गया ना। अगर वो हमें नफ्स पे कंट्रोल नहीं सिखाता तो कोई फायदा नहीं है। सर नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। मेरा स्टूडेंट अगर मेडिकल स्टूडेंट है, इसको मैंने नॉलेज भी दे दिया, इसको स्किल भी सिखा दी, लेकिन अगर इसका एटीट्यूड नहीं बदला टुवर्ड्स द पेशेंट, अगर इसको सिर्फ ये करता है कि उनको मरीज को साइंटिफिकली देखता है, उसके अंदर प्यार मोहब्बत नहीं डालता, मरीज जिस तरह हाफिज साहब बार बार मेरे सामने बैठे हैं, मुझे पता है कि मैं इनके पास क्यों अपने मरीज लेके जाता हूं। ये उसको ना सिर्फ सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, 10 मिनट लगा के इसको समझाते भी हैं, मुस्कुराते हैं। ये है एटीट्यूड। मेरे स्टूडेंट में क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा उस्ताद नहीं इस तरह करता। सो नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अल्लामा इकबाल का सर एक शेर है, हक अगर सोजे नदारत हिकमत अस्त। सर ये बड़े जबरदस्त की बात है, समझने वाली। हक, हक क्या मतलब है? रियलिटी। रियलिटी, कुरान इज रियलिटी, isn't it reality? सुन्ना इज रियलिटी। अगर सोजे नदारद हिकमत अस्त, ये हिकमत है। हिकमत क्या है? साइंस। इश्क मी गर्दद चू सोज अज दिल। टोबा टैक्सिंग के शहरियों ने इतवार के रोज तगड़ा नाश्ता करने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी हल साफ कर रहे हैं। अहमद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अपडेट कीजिएगा। इतवार के रोज़ टोबा टैक्सिंग के शहरियों की आंख ज़रा देर से खुलती है और इतवार के दिन जो है वो शहरी तगड़ा नाश्ता करने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख करते हैं। मैं इस वक्त नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो हलवा पूरी और नान चने पर हाथ साफ करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। उनसे बात भी करते हैं किसके साथ नाश्ता पॉइंट्स पर पहुँचे हैं। पहले तो रूटीन में हम कॉलेज जाते हैं, डेली 8:30 बजे हमारा कॉलेज लगता है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। ये मेरे दोस्त हैं सारे। आज हमने नाश्ता पॉइंट की तरफ रुकिया, हमारा दिल कर रहा था, सब लोग हम आपस में चिल माहौल करते हुए आ रहे थे, तो हमने सोचा है नाश्ता कर लें। बड़ी अच्छी माशाल्लाह ये हलवा पूड़ी बनाते हैं, तो हमने कहा हलवा पूड़ी टेस्ट करते हैं। एक और नौजवान मौजूद हैं, आप बताइएगा नाश्ते में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करते हैं? नाश्ते में हमें सबसे ज़्यादा जो है हलवा पूड़ी और चार चने होते हैं, ये बहुत लजीज होते हैं इनके। वैसे तो हम घर नाश्ता करते हैं, लेकिन छुट्टी का करके हम बाहर आए हैं, हम सब दोस्त, तो हम सब दोस्त आकर इकट्ठे नाश्ता करते हैं, तो संडे की संडे। बाकी वैसे तो हम घर करते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।